آج کل سماج میں ایک سمسیا بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ ہے کہ پتنیوں کے دوارا پتیوں کا پتارن مہیلائیں ابھی بھی کھل کر نہیں سامنا کر پاتے ہیں، نہیں کہہ پاتے ہیں مجھے ڈائیورس چاہیے، بلکہ وینٹنگ ٹارچر کرتے ہیں یہ دھمکیاں دے کر اگر ایسی مجھے چیز نہیں پرووائڈ کی تو میں پھانسی لگا لوں گی، ایسی چیز مجھے نہیں پرووائڈ کی تو یا ایسا میرے ساتھ نہیں کیا تو میں زہر کھا لوں گی۔ ان کو ریئل میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سچ میں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ اتیاچار کر رہے ہیں۔ آپ اپلیکیشن لکھیں، اپلیکیشن ساری سمسیا لکھیں، اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھیں، اپنا ایڈریس لکھیں اور یہ اپلیکیشن آن لائن پورٹل پہ ڈال دیں۔ آن لائن آج کل سماج میں ایک سمسیا بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ ہے کہ پتنیوں کے دوارا پتیوں کا پتارن، پتنیوں کے دوارا پتیوں پر اتیاچار، جس کے کارن بہت سارے پتی نہ چاہتے ہوئے بھی سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، یا پھر گھر چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، یا پھر جب پتنیاں ریئل میں سوسائڈ کر لیتی ہیں تو ان کو جیل بھی جانا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اگر پتنیاں کچھ بھی کام کرتی ہیں اپنے گھر میں رہ کر، قانونی سوسائڈ یا چاہے وہ پھانسی لگا کر یا زہر کھا کر، تو کہیں نہ کہیں اس کا دوشی پتی اور اس کے گھر والوں کو ہی مانا جاتا ہے۔ اور خاص کر جب پتنیاں یہ کارय پتیوں کے گھر میں رہ کر کرتے ہیں تب تو شہری ہسبینڈ بھی اس کے لیے لائبل ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ ہسبینڈ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، تو اس کارن ہسبینڈ کو سزا ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ہسبینڈ ایسے ہیں جو بیچارے جہاں کر بھی ان کے پیرنٹس بزرگ ہیں اور ان کی 2-2 سال 3 سال تک نہیں ہو پا رہی ہے کورٹ سے، ایون ہائی کورٹ سے بھی بیل نہیں ہو پا رہی ہے، تو ان پرتارن سے اور پتنیوں کے اس ٹائپ کے ٹارچر سے کیسے بچیں، کیسے اپنے فیور میں ساکش کو کلیکٹ کریں، کیسے اپنے ماں باپ اپنے فیملی سب کو سیو کریں، کیسے اپنی لائف کو سیو کریں، آج اس ویڈیو میں یہی چرچا میں کرنے والی ہوں۔ اور یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹینٹ ہے، سبھی اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں، اگر ذرا بھی مس کی تو بہت امپورٹینٹ پوائنٹ آپ لوگ مس کر سکتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ پوری ویڈیو بنا اسکپ کیے سنیں گے تبھی صحیح جانکاری اور سٹیک جانکاری مل پائے گی۔ السلام علیکم، آداب، میں ایڈوکیٹ شاہین، ورتمان میں الہ آباد ہائی کورٹ کی پریکٹیشنر ایڈوکیٹ ہوں، اور یہاں سے میں کیس لو اور دیس کی ہیرنگ میں دیکھتی ہوں کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو بیل نہیں مل پاتی ہے۔ ریزن ہے ان کے پاس اپنی یہ گناہی ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ ہسبینڈ کو جب لگے کہ میری وائف ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے، نہیں رہنا چاہتی، تو اس سے میٹنگ کرنا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے۔ اور آج کل سماج میں ایکسٹرا میٹل افیئرس ہونا، سماج میں ایک دوسرے کے دیکھ کر مہیلائیں اسی طرح سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہسبینڈ اس طرح سے ساری چیزیں مہیا نہیں کرا سکتے ہیں، تو ایک یہ بھی ریزن ہے کہ وائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے اور ان سے ڈائیورس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ سماج کی وجہ سے، بچے بڑے ہونے کی وجہ سے کچھ مہیلائیں ابھی بھی کھل کر نہیں سامنا کر پاتے ہیں، نہیں کہہ پاتے ہیں مجھے ڈائیورس چاہیے، بلکہ وینٹنگ ٹارچر کرتے ہیں یہ دھمکیاں دے کر اگر ایسی مجھے چیز نہیں پرووائڈ کی تو میں پھانسی لگا لوں گی، ایسی چیز مجھے نہیں پرووائڈ کی تو یا ایسا میرے ساتھ نہیں کیا تو میں زہر کھا لوں گی۔ ان کو ریئل میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سچ میں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ اتیاچار کر رہے ہیں، مجھے ساری چیزیں مہیا نہ کرا کر، اور جیسے ان کی شادی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جس کے ساتھ ہوئی ہے وہ ابشاپ ملا ہے، وہ اپنے پیرنٹس سے نہیں لڑتے کہ آپ نے میرے شادی ایسی جگہ کیوں کرائی ہے، بٹ ان کو ایک اندھی ہو کر دوسرے ساتھ میں افیئرس ہونے کے کارن یا پھر دوسرے کی دولت دیکھنے کے کارن ان کا جو مائنڈ ہے وہ اتنا اپنے آپ سے بے قابو ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو ایک دم سے ہر چیز ہری بھری دکھتی ہے، لگتا ہے کہ جو دوسروں کو پاس ہے وہی ساری چیزیں ان کی اپنی ہو جائیں گے اگر وہ دوسرے سے شادی کر لیں گی یا ان کے ساتھ رہیں گی، اور اپنے ورتمان پتی اور بچوں کو وہ ایک طرح سے تیاگنے کے لیے تتپر رہتے، ایسا کچھ سال پہلے نہیں تھا، بٹ اب خاص کر اس سال یہ بہت دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہسبینڈ سوسائڈ کر رہے ہیں، یا تو ہسبینڈ جو سوسائڈ نہیں کر رہے ان کا وائف کے دوارا مرڈر کیا جا رہا ہے، اور جو بچے ہیں بچوں کا ایون مہیلائیں مرڈر کر رہی، ہسبینڈ کا تو 1% یہ ہوتا ہے چلیے دوسرے گھر کا تھا، شادی ہو گئی، پسند نہیں کی، ان کا افیئرس پہلے سے تھا یا اتنا ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پایا تھا، بٹ بچے جن کو وہ جنم دیتے ہیں بوائے فرینڈ کو پانے کے لیے وہ بچے کا بھی مرڈر کرنے میں کچھ بھی سوچتے نہیں ہیں، کہیں کبھی لاش پہلے مل رہی ہے تو کبھی نالے میں تو کبھی گٹر میں، تو اس طرح سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس ساری چیزوں کا سمادھان نکالنے کے لیے ہسبینڈ کو ہی قدم اٹھانا پڑے گا۔ دوسری چیز ہے جب ایسے مسئلے ہوں
तब हस्बैंड को समाज के डर से और रिश्तेदारों के डर से बच्चों को भविष्य के लेकर वही मेंटली टॉर्चर्स बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि बैठकर बात करनी चाहिए, फ्रेंकली पूछना चाहिए क्या तुम मेरे साथ खुश हो या नहीं, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो नहीं। ये मुझे धमकियां देना, जहर खा लेना, कुछ महिलाएं तो इवन जहर खा भी लेती हैं, वो बचा ली जाती हैं। तो अगर ये सारी चीजें उनसे पूछना चाहिए कि तुम ये सब हरकतें मेरे साथ कर रही हैं, आप ये मेरे साथ हरकतें कर रही हैं, जो भी आपका संबंध हो, जिस तरह से आप बोलते हैं, जो आपके अपने लोकल लैंग्वेज हो, उस तरह से उनसे पूछें और कहें कि जो तुम ये हरकतें कर रही हो, ये चीजें क्यों कर रही हो, क्या रीजन, क्या मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो, मेरी कमाई जितनी है आपको उतने में एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर हस्बैंड के अंदर कोई बुरी हरकतें हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। अगर वार्तालाप में वाइफ को शर्तें रखती है हैबिट को छोड़ने के लिए, कुछ हस्बैंड्स की भी ऐसे होते हैं जिनकी कुछ हैबिट्स ठीक नहीं होती, जो कि शायद वाइफ्स को पसंद नहीं आती, ये भी डिस्प्यूट के रीजन होते हैं। बट अगर हस्बैंड्स को अपने भविष्य का, अपने बच्चों का, अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य बचाना है, सेव करना है, तो उनको भी अपनी गलत हैबिटें जो वाइफ को नहीं पसंद है उनको छोड़ने की कोशिश करना चाहिए एवं छोड़ना चाहिए। और अगर जेन्युइन जो भी डिमांड्स हैं पूरी करनी चाहिए। अगर हस्बैंड ये सब नहीं कर पा रहा है, ये जेन्युइन डिमांड्स नहीं है, या कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीज छोड़ने के लिए कहते, कुछ वाइफ्स इसलिए झगड़ा करती हैं कि अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, अपने बहनों से नहीं बोलो, उनको बुलाओ चलाओ नहीं, तो ये सब चीजें इम्पॉसिबल है। कोई हस्बैंड अपने परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहेगा, और जो तोड़ते हैं वो महाबेवकूफी करते हैं। खैर, तो ये सारी चीज़ें अगर ऐसी शर्तें वाइफ रखती हैं और इस कारण अगर सुसाइड करती हैं, तो उनको बैठकर बात करनी चाहिए। बात से अगर समाधान नहीं निकले, लेती हैं, कंटिन्यू मेंटली टॉर्चर हो रहा है, समाधान नहीं निकले, तो सबसे पहले एक अपना आप एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन सारी समस्या लिखें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, अपना एड्रेस लिखें, और ये एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल पे डाल दें। ऑनलाइन पोर्टल पे डालने के बाद में एप्लीकेशन एड्रेस और एक एसएसपी, एसएचओ, एसडीएम साहब थाने में, संबंधित थाने में ये एप्लीकेशन आपको दे देना है। और उसके बाद में आपको प्रॉब्लम बताना है। जनरली अगर आप ऐसा करेंगे तो थाने से कॉल आएगी, पूछा जाएगा हस्बैंड से, तो कोशिश करें उनके बाद पुलिस की हेल्प लें, अपने घर के मैटर को सुलझाने में। हो सकता है कि वाइफ समझ जाए। कुछ लोग ऐसी होती हैं जो अगर आप समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा, लेकिन उनको जहाँ पुलिस के डंडे की जैसे डर होता है, तो राइट टाइम हो जाती है। अगर हो सकते हैं समझाने तो समझाने की कोशिश करिए, परिवार को बचाने की कोशिश करिए। इवन लगे कि समझाने से भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तब लास्ट स्टेप है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत सेक्शन 13A के तहत डाइवोर्स फाइल कर दीजिए। डाइवोर्स फाइल जब करेंगे तो उसमें क्या होता है, जब हेयरिंग होती है तो हेयरिंग में वो एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। हस्बैंड को तलाक मिलने में बहुत आसानी हो जाती है, कम समय में तलाक भी हो जाता है। वैसे क्या होता है कि जब तलाक, अगर ये चीज स्टेप नहीं उठाए होते हैं, तब जब तलाक की के लिए हेयरिंग होती है तो वाइफ ने पॉइंट टू पॉइंट, कदम कदम पर अपने बात को बदलती है। कभी कुछ डिमांड, कभी कुछ डिमांड। खासकर ये महिलाएं जो बहुत ज्यादा अगर अपने घर से फ्रैंक होती हैं, या फिर जो महिलाएं अनएजुकेटेड होती हैं, या जो कहते हैं ना अत्यधिक ज्ञान वाली महिलाएं होती हैं, वो महिलाएं इस तरह की हरकतें बहुत ज्यादा करती है, अपने आप को होशियार और विद्वान मानते हैं। वो अपने दिमाग को हर कदम कदम पर इस्तेमाल करती हैं और स्टेटमेंट बार बार चेंज करती हैं। इस कारण तलाक लेने में डेट्स लगते हैं और बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है ना। तो वो एविडेंस रहेंगे, उस बेसिस पे पता चल जाएगा कि हाँ, इनका सुलह होने कराने की कोशिश की गई थी, ये चीजें कितने पुराने टाइम से चल रही हैं, वाइफ का नेचर इस टाइप से है, तलाक देना जरूरी है परिवार और बच्चों की जान और माल की हिफाजत के लिए, बच्चों के भविष्य को सेव करने के लिए। कोर्ट इस तरह से जल्दी को डाइवोर्स पिटिशन को सुनती है, और सुनने के बाद में उस पर डिसीजन इमिडिएटली देने की कोशिश करती है। और वही अगर हस्बैंड के अगेंस्ट अगर वाइफ हाई कोर्ट चली जाती है, तो हाई कोर्ट से भी या अदर सुपीरियर कोर्ट में अगर वाइफ जाती है, तो हस्बैंड के फेवर में जजमेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए चाहे हर हस्बैंड को, जो भी जिसके साथ ये सब घटनाएं हो रही हैं, वो इस तरह से अपने आप को सेव करें और कोशिश कर। इसी तरह से अगर मुस्लिम्स के साथ में ये चीजें हो रही है, तो वो भी तलाकुल बिद्दत खत्म हुआ है, तलाकुल सुन्नत खत्म नहीं हुआ है। तलाकुल सुन्नत भी बिना कोर्ट में जाए घर बैठ कर आप तलाक दे सकते हैं। और वही तलाक का प्रोसेस है, 3 बार तलाक। बस तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत में अंतर से इतना है कि तलाकुल बिद्दत में एक बार तलाक होकर आप दोबारा अपनी वाइफ के साथ में नहीं रह सकते हैं, और उसमें पनिशमेंट आपको कर दिया गया है, बट और एफआईआर भी होगी। बट तलाकुल सुन्नत में है कि आप तलाक देंगे बिना कोर्ट चाहे हुए, और
आपकी तलाक वैध मानी जाएगी। बट हाँ, तलाक देने के बाद अगर 3 महीने के अंदर हस्बैंड को लगे कि उसने तलाक गलत किया है, या वाइफ को लगे नहीं मैं हस्बैंड के बिना नहीं रह सकती, तो वो दोनों का अगर एग्रीमेंट हो तो फिर से वो एज ए हस्बैंड वाइफ रह सकते हैं। वो 3 महीने तलाक को 3 महीने के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। और तलाकुल सुन्नत है, तलाकुल बिद्दत में यही अंतर है। बाकी कभी आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इस चीज़ को बहुत डिटेल में बताऊंगी। अभी खाली हो बस इतना ही। और इस तरह से सभी हस्बैंड अगर स्टेप उठाएंगे तो तलाक भी एक ऐसा समाधान है जो अपने और अपने बच्चों की और जान और माल की हिफाजत कर सकते हैं, परिवार को बचा सकते हैं। अदरवाइज वो जो किच और टेंशन में रहकर अपने जो जीवन एक बार मिला है वो बार बार उसको सिर्फ रात दिन हाय हाय तौबा में जिंदगी गुजारना में कोई समझदारी नहीं है। मैं तो यही सजेशन दूंगी। और इस तरह से मुझे लगता है कि जो अभी इस साल देखने को मिला है जिस तरह तेजी से मर्डर हो रहा है, इन मर्डर्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चों के जो मर्डर हो रहे हैं वो बच्चों के मर्डर्स भी सेव किए जा सकते हैं। और जो महिलाएं ये सब हरकतें कर रही हैं और हस्बैंड्स या पास पड़ोस लोग नहीं जान पा रहे हैं कि महिलाओं ने वो एक दिन में नहीं हो रहा है। उनका माइंड एक दिन में ये सब चीज डिसाइड नहीं करता करने के लिए। वो कहीं ना कहीं 7-6 महीने से उनके पीछे ये माइंड में चल रहा था कि उनको ये घटना के लिए अंजाम देना है। बस ये था कि वो उसका निष्पादन नहीं कर पा रहे थे। जैसे उनको मौका मिलता है उसका निष्पादन कर देते हैं। तो हर हस्बैंड की ड्यूटी होती है वो अपने बच्चों की भी हिफाजत करें। अगर लगता है कि उनकी वाइफ उनके साथ हैप्पी नहीं है और बच्चे की खतरा हो सकता है तो कोशिश करें अपने आप दोनों सेपरेट रहें, उसको आज़ाद करें और आप अपने जिंदगी को अलग से गुजारने की कोशिश करें। भले ही ये चीज़ें बहुत दुखदाई है कि और इस तरह से बोलना पड़ रहा है, लेकिन अब हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। लोगों को हमारी जो भारतीय संस्कृति थी जो कि बहुत ही अच्छी है और हमारे देश का कल्चर अदर देश को फॉलो कर रहे हैं, बट हमारे देश के लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में लगे पड़े हैं और जिस कारण अपना भविष्य को खराब करते ही हैं, बल्कि अपने बच्चे, अपने परिवार का, अपने समाज, अपने पेरेंट्स का सबका नाम बदनाम करने में लगे हैं। लेकिन ऐसी महिलाओं को हम आप सब मिलकर नहीं सुधार सकते। और वो ऐसी महिलाएं तभी सुधरेंगी जब उनको ठोकर लगेगी। वो जिस हस्बैंड के लिए भागकर अपना घर छोड़ रही है वो हस्बैंड वो इंसान होते हैं। उनको अच्छे से पता होता है जो महिला अपने माँ बाप की नहीं हुई, जो महिला अपने हस्बैंड की नहीं हुई, जो महिला इवन अपने बच्चे की नहीं हुई, वो महिला आखिर मेरी क्या होगी। 2 दिन 4 दिन हफ्ता बहुत हुआ साल 6 महीना रखकर वो भी उनको लात मारता है, लेकिन तभी उनकी अकल ठिकाने आती है। लेकिन अगर उनको वो ठोकर खाए बिना आप सुधरना चाहेंगे तो वो नहीं सुधरने वाले। इसलिए ऐसी महिलाओं को उनके हाल पे ही छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी मैटर में कोई सजेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगी कि उस पॉइंट पर वीडियो बनाऊँ। और मुझे सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।